For more updates, subscribe channel and press bell icon. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. آئیے حضرات ہم اور آپ سب خلوص و محبت کے ساتھ مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو بہار شفاعت احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس مبارک جمعہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و شریعت کے پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم تھا کہ کل کا جو تاریخ اور کل کا جو دن گزرا آپ سبھی کو معلوم ہے, تمام سنیوں کو معلوم ہے کہ جانشین حضور مفتی اعظم حضور علامہ مفتی اختر رضا خان تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک تھا. تو آج بھی جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں فاتح, دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں, تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں. بزرگان دین کی فاتح کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو میں آج جمعہ کے اندر حضرت کے تعلق سے کچھ روشنی ڈال دوں. کل بھی ماشاءاللہ کافی ہمارے بھائیوں نے سنا تھا سید رفیق صاحب کے دولت خانے پر. چاہتا ہوں آج بھی تھوڑا سا کچھ باتیں گوش گزار کر جاؤں تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے. جب ایک ولی کامل شریعت پر زندگی گزار کے جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں میں بھی مقبول ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ کی ذات بابرکت, یہ خدا کی قسم ایسا تقوی, ایسا طہارت. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں, میں آج تقوی کی بات آپ کی بتا دوں. حضرت کی تاریخ ہے پوری زندگی کے اندر کہ آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ کی عادت کیا ہے کہ جہاں استنجے کی حاجت ہوئی تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ضرورت کی چیز ہے, آدمی کو کبھی کبھی ایسا بہت اشد ضرورت ہو جاتی ہے استنجے کی تو آدمی کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے. لیکن واحد تاج الشریعہ اختر رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کی شان کا عالم یہ تھا, آپ سوانح حیات حضور تاج الشریعہ کی پڑھیں, جب بھی آپ نے استنجا کیا تو ہمیشہ اس ٹوائلٹ باتھ روم میں کیا جس کی چھت موجود تھی, جس کی چھت موجود تھی. آپ کی تاریخ ہے کبھی بھی آپ نے وہاں استنجا نہ کیا جہاں سے آسمان. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گاڑی میں جا رہے تھے, استنجے کی حاجت ہوئی تو گاڑی چل رہی ہے تو آسمان تو اوپر ہی تھا. آپ نے گاڑی کو رکوایا, رکوا کر کے کہا استنجے کی حاجت ہے. ایک طرف کو آپ گئے, ایک طرف آپ گئے. جب جانے لگے تو آپ نے فرمایا مریدین سے کہ میری گاڑی کے اندر چھتری رکھی ہے, نکالو. واہ, چاہتے تو آپ الگ جا کے استنجا کر لیتے, کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن اسے کہتے ہیں اللہ والوں کا تقویٰ. بولے جب اختر رضا نے کبھی اب تک کھلے آسمان کے نیچے استنجا نہ کیا تو آج کے کھلے آسمان کے نیچے استنجا کرے گا. بولے کہا میری گاڑی کے اندر چھتری کا انتظام ہے, میں جانتا ہوں کہ کبھی حاجت پڑ جائے استنجے کی تو آسمان کے نیچے استنجا نہ کیا جائے, میری چھتری نکالو, چھتری لگا کر حضرت میں استنجا. آپ کا مقام اللہ اکبر, یہ آپ کے تقوی کا عالم. ایک مرتبہ آپ کسی دورے کے اوپر باہر گئے, باہر جانے کے بعد وہاں مجمع تھا بہت, تو کافی خواتین کا بھی مجمع تھا. دیکھنے کے لیے آئے, دور دور سے بولے اختر رضا آئے ہیں, اختر رضا آئے ہیں.
इंडिया से बाहर की बात कर रहा हूं मैं, वहां पहुंचे तो अकीदत के अंदर आप जानती हैं, और तो कोई दम करवाने आती है, कोई सर पे हाथ रखवाने आती है। अचानक कोई खातून बर्दाश्त न कर सकी अपनी कैफियत को, हजरत की उम्र थी, बैत हाथ में लिए हुए थे, अचानक कोई खातून दौड़ करके आई और आकर के हजरत के हाथ पे अपना हाथ रख दिया। हजरत का इतना जलाल तारीख बताती है, इतना जलाल, आपने फरमाया अगर मुझे मालूम होता यहां खातूनें मर्दों का हाथ पकड़ती है या हाथ सर पे रखवाती है, करोड़ों मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला ला हौला, हजरत ने फरमाया जुमला, करोड़ों मर्तबा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर मुझे मालूम होता ये खातून ऐसे आकर किसी पीर या बुजुर्ग का हाथ पे हाथ रखती हैं तो मैं हरगिज अपनी जिंदगी में यह ना। हज़रात मोहतरम, ये हुजूर ताजुल शरिया का फतवा था, फरमाते में कभी ना आता अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो ज़ात हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह की पूरी दुनिया के अंदर बिलाशुबा उर्स मनाया गया ताजुल शरिया का, बिलाशुबा उर्स मनाया गया हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत का। हज़रात मोहतरम, ये वो ज़ात है कि अल्लाहु अकबर, एक शख्स आपके मुरीद थे, आलिम दीन थे, तो कुछ लोगों ने होते हैं आप उकसाने वाले, तो आपके उनके जहन में ये बात बैठ गई कि हाँ बोले यार मैं कहाँ गया मुरीद होने के लिए, मैं तो अब यहां नहीं आऊंगा, अब यहां हुजूर अख्तर रजा के यहां नहीं आऊंगा। आपके पास खबर पहुंची, उन्होंने आना बंद कर दिया। हुजूर ताजुल शरिया के पास खबर आई कि वो हुजूर बोले आपके एक मुरीद थे, उन्होंने कहा कि अब मैं यहां आइंदा नहीं आऊंगा, और कहने वाले ने कहा कि बोले हुजूर, बोले अब यह आदमी मुर्तद हो जाएगा। कहने वाले ने कहा बोले हुजूर आपके दामन को यहां से छोड़ा है, अब यह मुर्तद हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, इतना कहना था, ताजुल शरिया का तकवा देखिए। आप फरमाते हैं एक खादिम फौरन तौबा करो, तुम्हें मालूम नहीं अगरचे वो मेरे सामने जाहिरी तौर पे मेरी बारगाह में ना आए, लेकिन वो ताजुल शरिया अख्तर रजा के हाथ में हाथ दे चुका है। मेरा ईमान है जिसने मेरे हाथ में हाथ दे दिया, इंशाअल्लाह क़यामत तक भी वो मुर्तद नहीं होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने गायबाना तौर पे भी उसको बुरा नहीं जाना कि कोई मेरी बारगाह में आएगा तो ही मुझसे मोहब्बत करेगा, नहीं, बोले अगर वो नहीं आता है तो ना आए, वो जहां रहता है रहे, मोहब्बत करता रहे, लेकिन कोई आना मेरे पास जरूरी नहीं, और आइंदा आप उसके बारे में कोई नज़ेब अल्फाज नहीं करिए। बताइए ताजुल शरिया, क्या वो आदमी देख रहा था ताजुल शरिया को? क्या उसने देखा कि हजरत ने अपने खादिम को डांटा? नहीं, यह हजरत का तकवा था। बोले अगर कोई ना आए, अगर हमसे हमारे अल्लाह वालों से मोहब्बत रखता, वो भी हमारा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ताजुल शरिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके तक़वे और फतवे और सीरत को आप उठा करके देखें कि मामूली बात नहीं है साहब, इतनी सी उम्र के अंदर इतना काम करके जाना, और ऐसा मामला सामने हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह के, कि खुदा की कसम वो ज़ात कि जब फतवे लिखना शुरू किया था ताजुल शरिया ने, तो हर जबान के अंदर अल्लाहु अकबर, खुसूसी तौर पर जब मसला आया अरबी का, इंग्लिश का और उर्दू का, आप सोचो हिंदुस्तान के अंदर कितने मुफ्ती हैं, आप जाकर के मालूम करें। हुजूर बोले आपने अब तक कितने फतवे लिखे, जो बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम हैं उनसे आप मालूम करें। बोले हुजूर अब तक आपने अपनी उम्र के अंदर कितने फतवे लिखे, और एक तरफ ताजुल शरिया की जात को उठा के देख लें, ईमान लोगों का कैसे बचाया। अल्लाह अकबर, जब ताजुल शरिया की बारगाह के अंदर अरबी के फतवे आए और इंग्लिश के फतवे आए, तो अल्लाह अकबर इस्तफ्ता आए, तो आपने जो फतवे दिए तो वो इस्तफ्ता पहले इंग्लिश की जो तादाद है वो सुन लीजिए। इंग्लिश के अंदर जब इस्तफ्ता आता यानी सवाल आता कि बोले हुजूर जवाब इनायत फरमा, जब आप फतवे देते तो 1 2 3 4 फतवे नहीं लिखे कोई इंग्लिश के अंदर। ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ने, खुदा की कसम, इतने सवाल इंग्लिश के अंदर आपके पास आते, इतने सवाल करने वाले सवाल करते और फतवा मांगते। बोले हुजूर हमने इस्तिफ्ता आपकी बारगाह में भेज दिया है, अब हमें आप फतवा भेज दें। इंग्लिश के अंदर हुजूर ताजुल शरिया ने 3000 से ज्यादा फतवे लिख करके कौम का ईमान, 3000 से ज्यादा फतवे लिखे इंग्लिश।
कम समझते हैं आप 3000 फतवे, वो भी इंग्लिश जबान के अंदर। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंडिया से इस दफ्तर नहीं आते थे हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह के अंदर, बल्कि इंडिया से बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया से आपके पास में इस दफ्तर आते थे, सवाल आते थे, हजरत उसका जवाब इनायत फरमाते थे। अल्लाह अकबर। और अरबी के अंदर, जितो अरबी बड़े बड़े के बस की बात नहीं जो अरबी के अंदर फतवा देते हैं। ये अरबी ग्रामर जानने वाले लोग जानते हैं कितनी हार्ड ग्रामर होती है अरबी की। जब अरबी के अंदर बाहर से फतवा आते, यहां तक के 100 से में फतवे आए, आप तारीख उठा के देख लें। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरबी के अंदर पता है कितने फतवे लिखे हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब कलम चलाया अरबी के अंदर, तो 100, 200, 500 फतवे नहीं लिखे, 6000 से ज्यादा फतवे अरबी में लिख करके लोगों का ईमान बचाया। अरबी के अंदर 6000 से ज्यादा। और जो हम और आप जबान बोलते हैं उर्दू, कभी जाके पूछना सौदागिरान मोहल्ला के अंदर मुफ्तियान इकराम से कि बोले हुजूर मुफ्ती अख्तर रजा, ये अहमद रजा के चराग ने, अहमद रजा के शहजादे ने, परपोते ने कितने फतवे लिखे हैं उर्दू जबान के अंदर? तो पूरे बरेली के मुफ्तियान इकराम झूम कर कहेंगे 1000 फतवे न लिखे, 2000 न लिखे, 3000, 10,000, 20,000 फतवे न लिखे, बल्कि 22,000 से ज्यादा फतवे उर्दू में लिखकर रसूल के गुलामों का ईमान बचाया। 22,000 से ज्यादा फतवे लिख करके। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि खुदा की कसम क्या शान है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह की, कि आपके फतवों का ये आलम, ये आलम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 22,000 से ज्यादा फतवे लिख देना, और किसी भी टाइम कोई आदमी कोई सवाल कर लेता। हजरत की ये शान थी, अल्लाह ने ऐसा इल्म का पहाड़ बनाया और ऐसा इल्म अता फरमाया, किसी भी टाइम कोई भी कुछ सवाल कर ले, हजरत फौरन हाजिर जवाब में। ये आप कम समझते हैं बात? क्या जरूरी है आदमी के हर वक्त में हर मसला जहन में रहेगा? नहीं। बड़े बड़े मुफ्तियों को हमने खुद देखा, वो कहते हैं मैं हुजूर कल तहकीक के साथ आपको बताता हूं फतवा क्या है, कल मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं लिख करके क्या है, मैं 3 दिन के अंदर आपका जवाब देता हूं क्या है, मैं 10 दिन के अंदर आपका जवाब देता हूं क्या है। लेकिन वारे इमाम के प्यारे शहजादे मुफ्ती अख्तर रजा जब कोई सवाल करता, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फौरन उसके सवाल का जवाब आपने आया। याद की शान थी, फौरन जवाब इनायत फरमाते हैं। और सवाल करने वाला कहीं से भी सवाल कर लेता है। आज लोग आपने देखा होगा, बड़े बड़े उलमा इकराम जानते हैं, आप कारी शमीम साहब से पूछें आकर के, अगर कोई 8 साल जामे अजहर के अंदर पढ़े तो वो अपने आप के ऊपर, ये जिंदगी में वाकई ही शरफ की बात होती है, वो अपने आप के ऊपर फख्र हासिल करता है कि मैं जामे अजहर यूनिवर्सिटी से फारिग हूं। अगर कोई 3 साल पढ़े वो अपने ऊपर फख्र हासिल करता है मैं जामे अजहर से फारिग हूं। कोई 5 साल पढ़े वो अपनी उम्र के अंदर ये शरफ हासिल कर लेता है और कहता है मैं जामे अजहर से फारिग हूं। जितने जामे अजहर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अल्लाह अकबर, जामे अजहर से कोई पढ़ के आ जाए आलिम दीन, या कोई पढ़ करके आए और फिर दीन की खिदमत करे, तो वो ये मिंबर रसूल पर कहता है कि मैं तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूं कि मैं अजहर से फारिग हूं, जामे अजहर से फारिग हूं, मुझे ये फख्र हासिल है। लेकिन मेरे दोस्तों, सारे उलमाए सुन्नत जब जामे अजहर से जो फारिग होता है वो ये कहता है कि मुझे फख्र है मैं जामे अजहर से फारिग हूं। लेकिन जामे अजहर ये कहता है कि अल्लाह अकबर, हम ताजुश शरिया पे फख्र करते हैं कि हमें ताजुश शरिया पे आलिम ये कहे कि हमें फख्र है कि हम जामे अजहर से फारिग हैं, और जामे अजहर यूनिवर्सिटी ये कहे कि हमें अख्तर रजा पे फख्र है। मिल्लत इस्लामिया दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या समझते हैं आप? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह अकबर। आपके इल्म का यह मामला था, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, खाली एक छोटी सी बात बताकर गुजरना चाहता हूं। जब हुजूर ताजुश शरिया को एक कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको बुलाया गया जामे अजहर के अंदर, तो कोई सवाल के ऊपर बहस हुई, वहां के बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर, किसी मसले के ऊपर बात चली, मसला तवील हो जाएगा, खाली मैं बताकर जाना चाहता हूं कि अल्लाह अकबर जब बात चली तो ताजुश शरिया ने फरमाया आपकी ही यूनिवर्सिटी के अंदर फला किताब रखी है, उस किताब को मंगाओ। स्टेज पर किताब को मंगाया गया, आपने फरमाया फला
صفحے کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور آپ کے سوال کا جواب آپ کی یونیورسٹی کتاب کے اندر موجود ہے کر کے آپ کے علم کا یہ عالم، آپ کے علم کا یہ عالم۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا آپ کے علم کا عالم ہوگا؟ اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ اور جب میرے دوستو بتا جاؤں، واقعہ نگاری مقصود نہیں، سوچو آپ کا تقویٰ کیا تھا۔ جب آپ افریقہ میں گئے تھے، آنکھوں کے آپریشن کی بات آئی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کتنے گھنٹے بتائے تھے کمپیوٹر سے دیکھ کے آپ کی آنکھوں کو؟ جب کمپیوٹر سے چیک کرا افریقہ کے اندر، تو چیک کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹر نے کہا 8 گھنٹے 13 منٹ کا آپریشن ہے۔ کیا کہا تھا؟ آپ کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے، حضور تاج الشریعہ کی آنکھوں میں جو تکلیف ہوئی بصارت تھی، تو کہا 8 گھنٹے 13 منٹ کا آپریشن ہوگا آپ کا۔ اللہ اکبر، 8 گھنٹے 13 منٹ کا آپریشن۔ جب آپ گئے نرسنگ ہوم کے اندر، تو جانے کے بعد آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ جب ڈاکٹر نے سارے اوزاروں کی تیاری کری آپریشن کی، تو آپریشن کی تیاری کرنے کے بعد آپ نے کلائی پکڑ کے کہا تھا کہ بولے ڈاکٹر کیا کر رہے ہو؟ بولے آپ کے دھرم گرو انجیکشن لگے گا بے ہوشی کا، پھر آپریشن ہوگا۔ آپ نے کلائی پکڑ کر فرمایا ہرگز نہیں، یہ ممکن نہیں کہ بے ہوش کا انجیکشن لگوا کر میں آپریشن کروں۔ نہیں، آپ نے فوراً اپنے جد امجد کا حوالہ دیا۔ کیا دنیا بھول گئی؟ بولے میرے جد امجد، میرے دادا نے، حضور حجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ نے ادے پور کی سرزمین پر جب تقریر کری تھی، اور تقریر کرتے کرتے آپ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ کے اندر بہت بڑا زخم تھا۔ آپ نے جیسی تقریر کرتے ہوئے آپ نے کرسی کے اوپر ہاتھ مارا، زخم پھٹ گیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ حجت الاسلام حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جب کرسی پر گر کے بے ہوش ہو گئے، لوگ لے کے گئے ادے پور کے پاس میں ایک ہاسپٹل تھا جو عیسائی کا تھا۔ کس کا تھا؟ عیسائی کا۔ وہاں لے کر کے گئے، حجت الاسلام حامد رضا کو لٹایا گیا۔ لٹانے کے بعد اللہ اکبر، ساری تیاری آپریشن کی بلا تشبیہ، بات سنیے، جب بلا تشبیہ آپریشن کی تیاری کرنا شروع کری گئی، کیا ہے یہ گھرانہ اعلیٰ حضرت کا، ایسے کا ایسا معاملہ وہاں آیا، آپریشن کی تیاری ہوئی۔ حضور حامد رضا خان رحمت اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپریشن کی تیاری، کینچی بھی آ گئی، پٹی بھی آ گئی، بلیڈ بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی، ڈریسنگ کی سارے سامان آ گئے، آپریشن کی تیاری ہے۔ کہا اب آپ کے ایک انجیکشن لگایا جائے گا بے ہوشی کا، پھر آپ کو کرا جائے گا۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بے ہوشی کا انجیکشن وہ بھی حامد رضا لگوائے گا، اعلیٰ حضرت کا بیٹا لگوائے گا، احمد رضا کا بیٹا لگوائے گا۔ بے ہوشی کر کے اس انجیکشن کے اندر الکول لگا ہوا ہوتا ہے، الکول ملا ہوا ہوتا ہے، اور وہ نشے کی چیز ہوتی ہے، اور نشے کی چیز کو کسی چیز میں بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ حامد رضا نے کہا نہیں نہیں، اگر تم میری کچھ بات مانو تو سمجھ لو۔ ڈاکٹر نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عیسائی ڈاکٹر تھا۔ کہا تم میرے بیٹ کو ذرا سا موڑ دو، جس بیٹ پہ مجھے لٹا رکھا ہے اس بیٹ کو تھوڑا سا موڑ دیا جائے۔ کہا کیا موڑ دیا جائے؟ کہا میرا سر اتر کی طرف کر دیا جائے، میرا سر اتر کی طرف جائے۔ ڈاکٹر حیرت بولی اتر کی طرف کیوں کراتے ہو؟ یہ پورا پچھمی ٹھیک ہے بیٹ۔ آپ نے کہا نہیں، میرے بیٹ کا رخ اللہ ہو، میرا سر اتر کی طرف ہو جائے۔ کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں اس لیے کہ ہمارے ہندوستان سے اتر کا جب رخ کیا جاتا ہے تو مدینہ شریف کا رخ ہو جاتا ہے، مدینہ شریف کا رخ ہوتا ہے۔ اور جب مدینہ شریف کا رخ کر دیا تو کہا جب تم میرے پیٹ کو اتر کی طرف کرو گے، میرا سر اللہ اکبر مدینہ کی طرف ہو جائے گا، چہرہ میرا قبلے کی طرف ہو جائے گا، چہرہ میرا قبلے کی طرف ہوگا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب حامد رضا کہتے ہیں میری دوسری بات دھیان سے سنو، جب تم میرے باڈی کے اندر آپریشن شروع کرو، ہاتھ کو کاٹنا شروع کرو اور گندگی فاسد نجاست کو نکالنا شروع کرو، یہ فاسد نجاست جب نکالو تو پہلے چیک کرنا، اگر میرے پیر ہلے تھوڑی سی چٹکی مار کے دیکھنا، اگر میرے پیر ہلے تو رک جانا، مجھے کچھ پڑھنے دینا، پڑھنے کے بعد پھر میرے پیر اگر ہلنا بند ہو جائے تو تمہارا کاٹنے کا کام شروع کر دینا۔ حامد رضا نے اتنا کہا تو ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہو ویسے ہی کر لوں گا، لیکن یہ ناممکن ہے، آپ بے ہوش نہ ہوں گے تو بہت تکلیف ہوگی۔ آپ نے کہا جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، اگر تین بار چٹکی نوچنا، اگر میرے پیر تھم جائے آپریشن شروع کر دینا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے جیسے کہا یس بولے شروع کرو، حامد رضا نے کہا
शुरू करो। अल्लाह अकबर। आपने अभी पहला मिसरा पढ़ा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ने हाथ लगाया तो पैरों में हरकत करी, डॉक्टर ने हाथ को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। फिर आपने कहा दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। फिर आपने दूसरा मिसरा पढ़ा, इस तरफ उठ गई दम में थम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। फिर आपने तीसरा मिसरा पढ़ा, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। फिर डॉक्टर ने हाथ लगाया, अब पैर हिलता नहीं है, अब डॉक्टर ने काटना भी शुरू कर दिया, ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। इधर ऑपरेशन हो रहा है, उधर हामिद रजा कह रहा है, यही कह रहा है कि कुल जहां मिल के और जो की रोटी गिजा, उस शिकम की कनाहत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। इधर ऑपरेशन पूरा हुआ, ऑपरेशन पूरा होने के बाद में इधर हामिद रजा का, इधर हामिद रजा का मक्ता तैयार था। कहा काश महशर में जब उनकी आमद हो, बेटे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। डॉक्टर ने कहा रुक जाओ हामिद रजा, रुक जाओ। कहा बोले क्या बात है? बोले ऑपरेशन तो हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ आखिरी बात बाकी है। कहा आखिरी बात तुम्हारी पूरी कर लेना। डॉक्टर ईसाई था, हाथ पकड़ के कहा तुम्हारी बात पूरी बात में कर लेना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। फिर हामिद रजा ने कहा काश महशर में जब उनकी आमद हो, शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ईसाई ने कलमा पढ़ा, उसी की मोहब्बत को देख करके ताजु शरिया ने कहा था अभी रुक जा, ऑपरेशन कर बगैर इंजेक्शन के लगाए हुए, और बेहोश करके नहीं, मैं पढ़ता रहूंगा क्या जो मेरे जद्दे अमजद में पढ़ा था वही तो अख्तर रजा पढ़ेगा। जब अफ्रीका की सरजमीन पर उसी हॉस्पिटल के अंदर ताजु शरिया की आंखों को ऑपरेशन शुरू हुआ तो ताजु शरिया ने अपनी जबान से कहा था, क्या कहा था? काबे के बदल दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर के यही रहे थे, क्यों कहूं कि बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा साथ, तुम पे करोड़ों दुरूद। इधर ताजु शरिया का ऑपरेशन पूरा हुआ, ऐसे ही जैसे ही ऑपरेशन पूरा हुआ, इधर के अफ्रीका के डॉक्टर ने ताजु शरिया का हाथ पकड़ के कहा देर न कर अख्तर रजा, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। ये घराना है आला अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे ही कोई मामूली घराना नहीं है आला हजरत का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए आज हम और आपको जरूरत है इसी चीज की। तकरीरें बेशुमार होती हैं, करामतें बेशुमार होती हैं, उसके साथ साथ बाप की जो खिदमत करके गए हैं हुजूर ताजुश शरिया ने जो फतवे लिखे हैं, खुदा की कसम ऐसे फतवे दुनिया को दिए हैं कि बड़े बड़े लोग जहां पे रुक जाते थे, उनका इल्म खत्म हो जाता था, वहां ताजुश शरिया अपना फतवा देते थे, लोगों का ईमान बचाते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए बड़े बड़े फतवे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ने हम तक पहुंचाए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए याद रखिए कि हमें हुजूर ताजुश शरिया के फतवों पे अमल करके जिंदगी गुजारना है। मेरे दोस्तों, संजीदगी के साथ मैं आपको बता जाऊं, हमेशा हमेशा औलिया इकराम से मोहब्बत करो। इस पुरफितन माहौल के अंदर बड़ी बड़े फितने उठ रहे हैं, बड़ी बड़ी गंदी आवाजें सामने आती हैं। मैं कह करके जाना चाहता हूं, परेशानी खुदा ना करे घर में हो, सरकार मुफ्ती आजम की फातिहा बराबर दिलाओ। घर में परेशानी हो, सरकार गरीब नवाज की परेशानी, गरीब नवाज का फातिहा करो। घर में परेशानी हो, सरकार गौसे आजम की परेशानी, सर गौसे आजम की फातिहा नहीं करो। मेरे दोस्तों, गौसे आजम की फातिहा, गरीब नवाज की फातिहा, आला हज़रत मुफ्ती आजम की फातिहा जब आप घरों में करोगे, हमारा ईमान है, हम मिंबर से कहते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह इनकी फातिहा खाने की बरकत से तुम्हारी परेशानी को दूर फरमाएगा। जब तक जिंदा रहो अपनी नस्लों को बताते रहो कि हमें औलिया इकराम से मोहब्बत करनी है, हमें औलिया इकराम के नक्शे कदम पर चलना है, हमें जो वलियों ने मिशन बताया है उसी मिशन को हमें लेके चलना है। हमारी नस्लों को इस बात की गुत्ती पिला दो कि वो बड़े होने से पहले पहले जान जाए कि आला हजरत कौन है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कौन है, हुजूर ताजुश शरिया कौन है, गरीब नवाज कौन है,
है, गौस आजम कौन है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं हम खाली अपना ही ईमान बचाने में लगे, बल्कि अपने बच्चों को भी आपको ईमान बचाना है, अपनी बच्चियों को भी आपको ईमान बचाना है, अपने मोहल्ले का, अपने अजीजों अकारिब का। किताबें घरों में रखो तो आला हजरत की किताबें रखो, अपने किताबों में घर में रखो तो ताजुश शरिया की किताबें निकली भी है, उन किताबों को घरों के अंदर पढ़ाओ ताकि हमारे ईमान की हिफाजत हो सके। अब कोई अगर ये कहे, उसके जहन में छोटी सी बात ये आ जाए कि बोले हुजूर का सारा काम आला हजरत पे किया जाए, गरीब नवाज भी तो मौजूद है, गौसे आजम भी तो मौजूद है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहकर जाना चाहता हूं कि अगर खुदा की कसम जिसने मुफ्ती आजम हिंद के फतवा पे अमल कर लिया, तरीके पे अमल कर लिया, जिसने अहमद रजा के तरीके को अपना लिया, उसके घर में गौसे आजम के नारे भी लगेंगे, गरीब नवाज के नारे भी लगेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत का मिशन भी वही था जो गरीब नवाज का मिशन है, हुजूर ताजुश शरिया का मिशन भी वही था जो गौसे आजम का मिशन है। ये कोई अलग अलग तरीके नहीं है कि सिर्फ मेरे दोस्तों किसी का नाम ताजुश शरिया है, किसी का नाम मुस्तफा रजा है, किसी का नाम अहमद रजा है, किसी का नाम सरकार गरीब नवाज है, तो किसी का नाम सरकार गौसे आजम है। मेरे दोस्तों, सबका रास्ता, सबका मिशन एक ही है जो हमें ले जाता है मदीने वाले तक, जो हमें मदीने वाले तक ले जाता है। इसलिए मैं इस जुम्मे के अंदर यही मैसेज आपको देकर के जाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हमेशा औलिया इकराम से मोहब्बत करो, चाहे वो वली दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो वली साबिर पाक कलियर शरीफ के हो, चाहे वो वली हमारे मदार साहब रहमतुल्लाह हो, और चाहे वो हमारे वली सरकार गरीब नवाज हो, और चाहे वो वली बरेली के अहमद रजा हो। हर वली हमारे सरों के ताज हैं, ताज हमारे सरों के ताज हैं। हम उनके कदमों के जर्रे के बराबर भी नहीं, हम उनके कदमों के जर्रे के बराबर भी नहीं है। इसलिए हम सबको, मेरे दोस्तों, कुरान और शरीयत पे अमल करके वलियों से मोहब्बत करनी है, कुरान और शरीयत पे अमल करना है, वलियों से मोहब्बत करनी है, कुरान और शरीयत पे अमल करना है, सहाबा से मोहब्बत करनी है, कुरान और शरीयत पे अपनी जिंदगी गुजारो, नबी के नारे लगाते जाओ, नबी का मिलाद मनाते जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।